गदवाल के मार्केट यार्ड कंपाउंड की दीवार को गैर कानूनी तौर से तोड़ने की शिकायत है। तकरीबन 22 दुकानें बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया गया। गदवाल कांग्रेस पार्टी की इंचार्ज सरिता ने मार्केट यार्ड का मुआयना करते हुए कहा कि कंपाउंड दीवार को बगैर किसी इजाज़त के तोड़ा गया, जिस पर फौरी तौर पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतवार और पीर की छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए कुछ ताजर कंपाउंड वाल को तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की। मार्केट यार्ड सेक्रेटरी ने तस्दीक की कि उन्हें किसी भी तरह की इतला नहीं दी गई और ये गैर कानूनी तौर से जिस पर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। పర్మిషన్ ఉంది మా దగ్గర. ఇప్పుడు మేము కాంపౌండ్ వాల్ కొట్టి షాప్ కట్టుకుని కాంపౌండ్ వాల్ పడగొట్టున్నాం. 2018లో మేము మార్కెట్ యార్డ్ ద్వారా మేము కరెక్ట్ చేసినాము. దానికి కానీ అప్పుడు మార్కెట్ సెక్రటరీ గారు కూడా మాకు పర్మిషన్ అప్పుడే 2018లో మాకు పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చినాడు. మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఇప్పుడు మేము పడగొట్టాలని దానికన్నా ముందర కూడా ఇప్పుడు ఉన్న సెక్రటరీ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ద్వారా కూడా మనము పర్మిషన్ తీసుకొని మేము ఇప్పుడు మా షాప్ రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసే దాని కొరకు మేము డిస్మిటల్ చేస్తున్నాం. మొన్న ఆదివారం సెలవు దినం చూసుకొని ఈరోజు మన మార్కెట్ యార్డ్కి సంబంధించిన ఒక ప్రహారీ గోడ 22 మడికలకి సంబంధించి కంప్లీట్గా ప్రహారీ గోడను కూడా ఇరగొట్టడం జరిగింది. ఇది ఎవరి స్వార్థం కోసమో వ్యక్తిగతంగా చేసిన పనో ఈరోజు ఆల్రెడీ కేసు కూడా నమోదు చేయడానికి పోతున్నారు సెక్రటరీ గారు. ఆయనకి అడిగితే ఆయన కూడా ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్. महबूब नगर के रुकने पार्लियामेंट डी.के. अरुणा ने गदवाल में मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने गदवाल के मौजूदा एमएलए पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि गदवाल के मौजूदा एमएलए कृष्ण मोहन रेड्डी आवाम को धोखा दे रहे हैं और ये वाजह नहीं कि वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। डी.के. अरुणा ने दावा किया कि वो खुद अपने दौरे वजारत में गदवाल में अहम तरक्याती काम कर चुकी हैं, लेकिन मौजूदा एमएलए ने गदवाल की तरक्की के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। उनका मजीद कहना था कि 3000 पसमानदा ख़ानदानों को घर देने का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा एमएलए कृष्ण मोहन रेड्डी क्रेडिट चोरी कर चुके हैं। మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల సందర్భంగా ఎందుకంటే ఇవాళ షెడ్యూల్ వస్తున్నటువంటిది అందరికీ సమాచారం ఉంది, వాళ్ళ షెడ్యూల్ రావచ్చు అనేది. సో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలకు గత కొన్ని రోజులుగా కూడా ఎన్నికలు వస్తున్నాయనే ప్రిపరేషన్లో అన్ని మున్సిపాలిటీలో పెద్ద ఎత్తున మరి పోటీగా చేసినటువంటి అభ్యర్థులందరూ కూడా ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్నారు. సో ముఖ్యంగా నేను గద్వాల మున్సిపాలిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ నేను కోరేది ఒకటే, ఈ రాబోయే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో గద్వాల ప్రజలందరినీ కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా, భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున నిలబడినటువంటి కౌన్సిలర్లందరినీ కూడా మీరు భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని మిమ్మల్ని 2 చేతులైతే నమస్కారం చేసి విన్నపం చేస్తా ఉన్నా. ఈ యొక్క గద్వాలను బాగు కోరి ప్రజలందరూ కూడా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కావచ్చు, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక కావచ్చు, ఈడ ఉన్న వాళ్ళు ఇటు అటు పార్టీలు. महबूब नगर शहर में माँ और बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशरफ्त हुई। यनम हेल्थ कार्ड स्कीम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर महबूब नगर के रुकन असम्बली यनम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि ये कार्ड उन माँओं को दिया जाएगा जिनकी डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हुई हो और इसके ज़रिए माँ और बच्चे को 1 साल तक खानगी अस्पतालों में मुकम्मल तौर पर मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ताउन से शुरू किया गया है, जिसका मकसद गरीब और मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों को मयारी इलाज फराहम करना है। एमएलए ने बताया कि महबूब नगर में इलाज के अखराजात हैदराबाद के मुकाबले में कम हैं और यहाँ के डॉक्टर भी महारत में किसी से कम नहीं। డాక్టర్స్ అంటే ఒక అపోహ ఉంటుంది. ఈరోజు మీడియా ద్వారా మహబూబ్ నగర్ ప్రజలకు కానీ మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఒక మెసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నాం. మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న డాక్టర్స్ వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్, వాళ్ళ ప్రావీణ్యత చూస్తే ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కు అపోలో కావచ్చు, ఏఐజీ కావచ్చు, పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్ హైదరాబాద్లో మీరు ఏదైతే పేర్లు వింటారో వాటికి అక్కడ పనిచేసే డాక్టర్ల కంటే తక్కువ ఏమీ కాదు. ఇంకా పేషెంట్ కేర్లలో వాళ్ళకంటే ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటారు. చాలా మంది నేను చూసా, యంగ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. 24 గంటలు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్ సేవ చేసే కార్యక్రమంలో ఉన్నారు.
तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मुस्लिम खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। इंद्रम्मा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत खवातीन को खुद रोज़गार फराहम करने के मकसद से सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। राजन्ना सिलसिला ज़िले के गंभीरापुर में मुनक्किदा प्रोग्राम में तकरीबन 100 मुस्तहक तरबियत याफ्ता और बेरोज़गार अक़लियती खवातीन को सिलाई मशीनें फराहम की गईं। इस मौके पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद बिलखुसूस खवातीन को खुद कफ़ील बनाने के लिए पुरअज़्म है। तक हमारी हाथ बटाई हो जाए, हम कुछ हद तक मेहनत करके एक रोजगार से खवातीन अपने शरीयत को कायम रखते हुए, अपने बुरखे को, अपने पर्दे को कायम रखते हुए किस तरीके से हम अपने पैरों पे खड़े हों, खुद मुख्तार हों, वो सोच कर ये हुकूमत फैसला ली कि ये नए मशीनों का स्कीम को हम कायम रखना चाहिए ताकि लोग अपने पर्दे का भी एहतमाम करते हुए अपने पैरों पे खड़े हों, रोजगार हो और घर में अपनी इस छोटी मोटी आमदनी से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे सब कुछ होने वाला है, लेकिन ये भी एक 10 चीज़ों में से ये भी एक अपने हिम्मत अफजाई के लिए, वही खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए एक हुकूमत की पहल है और जो ख़ास तौर पर हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सोच है। इसलिए क्योंकि अभी नरसिंह साहब और सरपंच उप सरपंच सब लोग बोले हैं कि यहाँ पर बहुत सारे तरक्याती कामें होने हैं। रिसेंटली मुझे उप सरपंच का फ़ोन आया था क्योंकि हम दोनों क्लासमेट से हम अरे तुरे से बात कर लेते हैं, फ्री बात करते हैं, तो एक बस का प्रॉब्लम बताया कि ये एक्सप्रेस बसेस जो है गोरंटियाल में हार्ड है क्योंकि यहाँ पे जो दमनापेट नागमपेट के जो लोग हैं, गंभीरापेट के लोग हैं, उनके लिए एक्सप्रेस का स्टॉप न रहने की वजह से मुश्किलात हो रही है। तो मैं फ़ौरन हमारे सीनियर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेदक जिले में माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर विजय लक्ष्मी ने बताया कि अक़लियती गुरुकुल स्कूल और जूनियर कॉलेजों में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। मेदक शहर के अक़लियती गुरुकुल में लड़कियों के लिए 5वीं जमात में दाखिले देने के लिए बराह रास्त प्रिंसिपल या मुतल्लिका अमले से रब्ता किया जा सकता है। इसी तरह नरसापुर के अक़लियती गुरुकुल में लड़कों के दाखिले के लिए भी प्रिंसिपल से रब्ता किया जा सकता है। గురుకుల పాఠశాల మెదక్ మరియు నర్సాపూర్ బాలికలు మరియు బాలులకు సంబంధించిన ప్రవేశాల కొరకై దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నాము. మెదక్ బాలికల గురుకుల పాఠశాలలో ప్రవేశాలు పొందుటకు గాను 40 సీట్లు అందుబాటులో కలవు. 5వ తరగతిలో ప్రవేశం పొందుటకు నేరుగా ప్రిన్సిపల్ని మరియు ఇతర సిబ్బందిని సంప్రదించవచ్చు. అలాగే నర్సాపూర్లో బాలుర గురుకుల పాఠశాలలో 80 सीट्లకు గాను 5వ सिकंदराबाद में पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक मकान में डकैती की वारदात में मुलविस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। सिकंदराबाद टास्क फोर्स और लालागुड़ा पुलिस ने ईस्ट मारेडपल्ली में होने वाली डकैती के मामले में कार्रवाई की थी। मुलजिमान को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब से दबोच लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से तकरीबन 4.5 लाख रुपये मालियत का मसरूक़ा सोना बरामद किया। तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। लालागुड़ा में 21 को जो केस दर्ज हुआ, क्राइम नंबर 17/2026 अंडर सेक्शन 309 BNS, उसमें कुछ क्लूज़ मिला। सो इमीडिएटली वहाँ पर हमारा जोनल टीम और टास्क फोर्स टीम वहाँ पर पहुँचा और 3 लोगों को वहाँ पर कस्टडी में लिया। जॉइंट टीम्स बनाया, 5 टीम्स बना के जो क्लूज़ वहाँ पर मिला, टेक्निकल एविडेंस से मिला, आज हमें ब्रेक थ्रू मिला। आज हमें इनसे 2 मोबाइल फ़ोन और 28.8 ग्राम्स गोल्ड चेन। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के दोमलगुड़ा के AV कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स में खेल महोत्सव का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत हमेशा खेलों को अहमियत देती रही है। క్రీడల్లో పాల్గొంటున్నటువంటి క్రీడాకారులకు అదేవిధంగా మన యొక్క కాలేజీ కరస్పాండెంట్ అయినటువంటి గౌతమి మేడం గారికి, మన కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ అయినటువంటి రాజలింగం గారికి, భరత్ గౌడ్ గారికి, మైపాల్ గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, అదేవిధంగా तेलंगाना के ज़िला मुल्क में
न्यूजीलैंड के कबायली यात्रा से पहले मेडारम मंदिर के अहाते में परफॉर्म कर रहे हैं। ये यात्रा 28 से 31 जनवरी मुनक्किद होगी। न्यूजीलैंड के वफ्द ने तकरीब से पहले की तकरीबात में शिरकत की, जिससे आलमी सकाफती जहद का इजाफा हुआ। यह हिंदुस्तान के सबसे बड़े कबायली इज्तिमात में से एक है। इस मौके पर मावरी फनकारों ने अपने रिवायती हाका रक़्स से अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन को मसहूर किया। ये दौरा हिंद न्यूजीलैंड सकाफती तबादले के प्रोग्राम का हिस्सा है। इस मौके पर तेलंगाना की वज़ीर सीतक्का और दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद के पुराने शहर में बजाज शोरूम के साथ वाक़ इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। चंद्रायन गुट्टा इलाके में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने फौरी तौर पर हंगामी कॉल का जवाब दिया और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए तेज़ी से काम किया। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह फ़िलहाल मालूम नहीं हो सकी। हुकाम वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आग किस वजह से लगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों हैदराबाद के नामपल्ली में एक फर्नीचर की दुकान वाली 4 मंजिला इमारत में पेश आने वाले हालिया आतिशज़दगी के हादसे में 2 बच्चों और एक बुज़ुर्ग खातून समेत 5 अफराद का दम घुटने से मौत हो गई थी।